Hello and welcome to another episode of Pondercast. Today's episode is special since we have Uzair Yunus. He's basically a well-known political and economic analyst, host of popular podcast like Pakistonomy, former director of the Pakistan Initiative at the Atlantic Council, currently working with the Asia Group. So काफी सारे topics हैं जिसके ऊपर I think we would be getting his insights, but primarily we would be covering the economic challenges, the political situation, the intersection of the governance and the business. He also has a paper on Web3, so we'll be talking about that as well. So शायद I think सारी insights आज cover ना हो पाए, but we will try our best. So welcome to the podcast, Uzair. Thank you so much for joining. Thanks for having me. कैसे हैं आप? ठीक ठाक? All good. It's a Saturday morning, so DC में मौसम September October is one of the best times of the year मेरे लिए. So it's beautiful time of the year, so enjoying that. But I know November से then the days are shorter, so it's gonna be a bit more annoying in the winter. But otherwise, can't complain. Everything's good. Sounds awesome. Thank you for taking the time out on a weekend, I think. So I think let's dive right in. I think we can initiate the conversation from the perspective of the recent amendments that we were seeing. There's a fiasco going on related to that. So आपके नजरिए में क्या ये centralization की effort है? Is it or is it basically right move from the decentralization perspective just to keep a check and balance? I think this, before we talk about whether what this may have, right, the impact kya hoga is development ka, we should consider and think deeply about what is motivating this, because that is more important than anything else. Or motivation is ki hai basically ke hukumat waqt is waqt or establishment ka ye manna hai कि Supreme Court as an institution has become too independent and too confrontational in terms of blocking and tackling what they want to achieve. Now, this has been an ongoing trend since 2007. Dr. Ilhan Niaz has written a paper that I've talked to him about. I think paper came out a number of years ago now, जिसमें वो आर्ग्यू करते हैं और बताते हैं कि 2007 की डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के बाद से किस तरह इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, नॉट इन अ परफेक्ट वे बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा बन के उभरा जो एट टाइम्स मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इन पर्टिकुलर कन्फ्रंट कर सके और पुश बैक कर सके. हिस्टोरिकली तो पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी की जो तारीख है, that's tainted in many ways. They've always cooperated with the military establishment, and even in the recent past have played footsie with them and continue to do so at some extent, to some extent. But by and large, it's become an institution that can stand up when it decides to, and it has done that in the past as well. So now that this reserved seats case judgment came out against what the ruling status quo wants in Pakistan, it led to a re-emergence of the conversation that we need to go and find a way to clip its powers. And by clipping its powers, we will create, a parallel constitutional court where we will put in our own people, because that's how they're approaching this from at least the draft that we all saw and discussed. And that will then be a way for us to circumvent this problematic institution that, can stand in our way. And oh, by the way, while we're at it, we're going to put in these amendments, anything related to national security can't ever be questioned, etc., etc. So एक आपने पूरा carve out दे दिया military establishment को भी, जो उनको भी चाहिए एक तरह से. So I think that's the intention here. So now, having understood motivation, at least the way I see the motivation, right, now we can talk about whether this will be good or bad. It's going to be disastrous. It's going to be disastrous because if you imagine a constitutional court filled with loyalists of the ruling regime, or any ruling regime, you end up very quickly towards what happened in Bangladesh under Sheikh Hasina, which is that you have a complete capture of the institutions of the state by a ruling dispensation. And as a result of that, that ruling dispensation can pass whatever law that violates all sorts of fundamental rights guaranteed under the Constitution. And the Constitutional Court is not going to do much about it. राइट तो आपका नेशनल सिक्योरिटी लॉज के अंदर आप कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रेगुलेशन जो है वो भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से बैठ के पॉडकास्टर्स जो हैं वो केओस फैला रहे हैं, सनसनी फैला रहे हैं पाकिस्तान में. So that means we're going to pass a law that's going to create all sorts of controls over what kind of content is shown on the internet. In the current situation where there is no constitutional court, or there is a Islamabad High Court that is quite independent and has a very independent streak,
you would argue that you would go to the Islamabad High Court and got it struck down, which is what happened, for example, with the electronic crimes amendments that Imran Khan tried to push. The Islamabad High Court struck those down. They were very draconian and violated fundamental rights. You lose all sorts of those protections. And in a place where Pakistan is right now, losing more of those protections, I don't think it's a good idea for anybody right now. Sure thing. Yeah, I think if we talk about the intention itself, that could be MILF-ID. But I think there could be a different motivation from the PMLN lens versus the military. I think military establishment might have its own, benefits out of this one. But if we just talk about just not the intention itself, if we just talk about the principle, for example, the principle of the separation of power itself, trias politica, as we call it. So उसमें ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिव्यू का तरीकाकार है, and then we also have the parliament which basically legislates on certain things, and in that particular case the argument is कि creator जो है उसको restrict नहीं किया जा सकता उसकी अपनी creation के ऊपर. So how do you see that particular argument? I mean, again, I'm not a lawyer on this, right? But the common sense, legal domain से थोड़ा बाहर बैठ के अगर हम common sense की बात करें, तो अगर आर्ग्यूमेंट ये है कि पार्लियामान जो है उसकी किसी भी चीज़ को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, तो अगर पार्लियामान उठ खड़े होके कह दे कि भाई जमहूरी निज़ाम ही नहीं है, 5 साल इलेक्शन नहीं होंगे, 5 साल हर 5 साल में, हम कहते हैं कि पार्लियामान कहता है और पार्लियामान तरमीम कर रहा है कि इलेक्शन के बाद 25 साल तक यही पार्लियामान रहेगी, तो क्या उसको कंटेस्ट नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। तो पार्लियामान की सॉवरेनिटी तो है, लेकिन पार्लियामान की सॉवरेनिटी एक तरह से महदूद भी है कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसके जो बेसिक गारंटीज़ हैं उसके अंदर जो दिए गए हैं शहरियों को या मुल्क चलाने के बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप नहीं उड़ा के बाहर फेंक सकते। दैट्स वेयर द सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इन, राइट? सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि पार्लियामान एक कानून पास करती है कि उस कानून के तहत पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ही जस्टिस का निज़ाम ही ख़त्म किया जाएगा, again you can't do that. There has to be a mechanism through which you appeal and say okay, what parliament is trying to do needs to be constrained, right? So I think that's where the value of a Supreme Court steps in. Now the government's argument or the People's Party's argument is कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हर तरह के केसेस आते हैं, आपकी बेल का अपील की भी केस आता है, किसी की डेथ पेनल्टी हो गई है उसकी अपील भी आती है, और ये आईनी पेचीदा मामलात भी आते हैं, तो हम सेपरेट कर देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना देते हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के जो सवालात हैं वहाँ वहाँ ये रेस किए जाएं. Again, I was literally, Salahuddin Ahmad ki conversation with Shehzad Ghyas on the Pakistan Experience is worth listening to. He makes a very good point. He says that in countries where there are constitutional courts, it's a completely separate pillar. पाकिस्तान में आप क्या कर रहे हैं? तो सेपरेट पिलर ये है कि जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल इशू रेज करूंगा जुडिशल निज़ाम के अंदर, तो मैं लोअर लेवल से स्टार्ट करूंगा और ऊपर जाते जाते टू द टॉप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिस्टम आर्ग्यूमेंट होगी, और वहां भी अगर मैं हार गया तो देन इट्स ओवर, एंड देन वहां अगर जीत गया तो देन आई विन, राइट? दैट्स जस्ट हाउ द कोर्ट्स वर्क. ये जो तरमीम है वो जो ला रहे हैं वो नीचे से ऊपर तक तो आप एक ही यूनिफाइड सिस्टम से चलेंगे, ठीक है ना? तो आप कोर्ट्स के अंदर आर्ग्यू करते करते सिंध हाई कोर्ट पे जाएंगे, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज के आर्ग्यूमेंट करेंगे. सपोज करें सिंध हाई कोर्ट ने आपको जीत दे दी और गवर्नमेंट अपील करना चाहती है, तो अब फैसला होगा कि अच्छा जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, तो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस है तो ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, right? But you have to then decide. And how do you then decide, and what's that mechanism? It's not a complete parallel system you're creating to deal with these issues. So it leads to a lot of confusion as well. आप कैसे decide करेंगे? अच्छा जी आपने decide कर लिया, अब इस केस के अंदर हो सकता है कि कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करती हों, कुछ पॉइंट जो है वो बाकी चीज़ों से रिलेट करते हो, तो क्या दो पैरेलल केसेस चलेंगे निज़ाम के अंदर ऊपर जाके अपील्स के लेवल पर? तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर. एंड अगेन द फंडामेंटल फ्लॉ इज के ड्राफ्ट जो था जिस पे वोट होना था, वो ड्राफ्ट ही किसी ने नहीं देखा था, उसमें बहस ही जो है वो 24 घंटे पहले शुरू हुई कि अच्छा जी इस पे जो है वोट डालना है. पार्लियामान के अंदर पार्लियामान के लोगों को ही नहीं पता था कि ड्राफ्ट है क्या जिस पे हमें यस वोट करना है. दैट्स आल्सो अ बिग इशू. सही बात है. So do you think कि ये थोड़ा सा eye wash था? They never wanted to pass that legislation. It was just to create some kind of a situation where everybody is getting dirty. So फिर काजी फाइजी से भी बात हो रही है और political parties पे भी बात हो रही है, but in the holistic equation, nobody is
secret in that particular case. नहीं, आई मीन ये कोई सोप ऑपरा तो नहीं है कि किसी ने बड़े स्ट्रेटजी सोच के बनाई कि अच्छा हम ये करते हैं कि सबको ही गंदा करना है, तो एक पूरा प्रोसेस चलाते हैं, सबको कहते हैं हम ये अमेंडमेंट ला रहे हैं, और अमेंडमेंट पे शोर शराबा होगा, पार्लियामान के लोगों को, एमएनएस को हम कहेंगे उम्रे से भी वापस आ जाओ और छुट्टियों से भी वापस आ जाओ और इस्लामाबाद में आके बैठो, मियाँ साहब को भी बुलाएंगे लाहौर से, वो आएंगे पार्लियामान के इजलास के लिए, लेकिन हमें पास नहीं कराना। बस ये ड्रामा करना है ताकि ज़रा बदनामी हो लोगों की, हमारी भी हो, खुद भी बदनामी हो कि हम फेल हो गए, हम निकम्मे नालायक हैं। आई थिंक Right. इंटेंट वेरी क्लियर है कि इंटेंट है कि इसको पास कराना है, और पिछले 24 घंटे में जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया है वो भी उस इंटेंट की अक्कासी Yeah. करता है कि किस तरह आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे थे, उसमें आपने अमेंडमेंट ला के वही पावर्स जो चीफ जस्टिस साहब के पास थे एक तरह से उनको वापस दे दिए। So obviously the intent is very clear that they want to get this done, and there are very strong reasons why they want to get it done. But these are short-term reasons, right? आप पूरे सिस्टम को दाव पे लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको किसी तरह पावर जो है वो अपने हाथ में रखनी है अगले कुछ सालों के लिए। So yeah. And what if, for example, if we are just talking about कि ये एक जज के लिए हो रहा है और एक centralization of power के लिए ये स्कीम चल रही है, and probably the second judge in line is not मेरे मेरे टाइप का बंदा, तो अगर what if Qazi Faiz Issa says no to this कि मैं extension नहीं लेता in that particular case, how would you control that? आई डोंट थिंक दिस इज अबाउट जस्ट दैट, राइट? अगर आप एक पैरेलल सिस्टम बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिसके अंदर भर्तियां पहले सदर साहब करेंगे, और उन भर्तियों के अंदर जो एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने 15 साल हाई कोर्ट में अगर लॉयर हैं तो आप बन सकते हैं जस्टिस इस कोर्ट के। तो दिस इज बियॉन्ड जस्ट मेकिंग काजी साहब the justice of this court or giving him a longer shelf life. I think this is more about how do we create an institution that is more pliable to our own designs. But what Pakistan's politicians in particular forget is कि इस मुल्क की पूरी तारीख गवाह है कि आपने अगर अपने लॉयलिस्ट लाने हैं तो सबसे पहला काम जो उस लॉयलिस्ट ने करना है वो आपकी फैंटी लगाना है। 47 से हम ये होता हुआ देख रहे हैं इस मुल्क में। तो अभी तक अगर आप नहीं सीखे और आपको लगता है कि जी हम एक इदारा बनाएंगे, उस इदारे में हम अपने लोगों को लाएंगे जो प्लायंट हैं, प्लायबल हैं, हमारे लॉयलिस्ट हैं, और उसके बाद बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा और हमें कोई तंग नहीं करेगा उस लेवल पर, तो ठीक है। अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो हम भी इधर बैठे हैं, आप भी इधर बैठे हैं, 4 साल बाद बात करेंगे। ये बात 4 साल पहले खान साहब भी क्या करते थे कि जी 10 साल का प्लान है और जो देखें अभी क्या होगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जब बात बिगड़ी तो ऐसी बिगड़ी कि वो अभी तक जेल में है, और मेरा मानना है उनको जेल से बाहर आना चाहिए। लेकिन होपफुली इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग ऑन द फैक्ट कि जब आपने आईएसआई को पार्लियामान में इजाज़त दी नंबर्स आपके पूरे करने की, तो आपको भी सोचना चाहिए कि आप क्या इनेबल कर रहे थे उस वक्त, और जो आपने इनेबल किया उसके नतीजे में आपको क्या भुगतना पड़ा वो आपने रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली चाहे वो खान साहब हों, चाहे वो शरीफ हों, चाहे वो जरदारी साहब हों, पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलिट्स, उनकी अपनी गलतियों के ऊपर नहीं सोचते। सही बात है। आई थिंक खान साहब पे दोबारा भी आएंगे, बट थोड़ा सा पिवट करते हैं। आई थिंक you alluded to the Gen Z power. I think you talked about the Bangladeshi revolution in the earlier part of the podcast. So I think we have a similar problem where we have 70% of the population, which is basically, uh, you can say, youth centric, or we have a youth pledge in that particular case. So uh, जो part of the problem है कि हम जो चीज़ understand नहीं कर सकते, we can't control it as well. So there is basically a disconnect versus the policymakers versus the general population, the 70% of the population in that case. So how do you see that panning out in particularly Pakistani context? Yes, see, the Bangladesh case is a bit different than the Pakistan case for a number of reasons. First of all, वहाँ वन पार्टी सिस्टम था फॉर ओवर अ डेकेड, पाकिस्तान में नहीं है, एंड नोवेयर क्लोज टू इमर्जिंग एट दिस पॉइंट। तो वो एक बड़ा डिस्टिंक्ट हमें डिफरेंशिएशन जो है वो जहन में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट है वो ये है कि बांग्लादेश एक होमोजेनस सोसाइटी है, राइट? एथनिकली सिमिलर है, सेम है बेसिकली, और पाकिस्तान नहीं है, राइट? Pakistan is also like much larger, much more complex from that ethnic demographic point of view. तो यहाँ बलोच भी हैं,
यहाँ सिंधी भी हैं, यहाँ महाजर भी हैं, यहाँ पश्तून भी हैं, यहाँ कश्मीरी भी हैं, पंजाबी भी हैं, सराइकी भी हैं, बल्तिस्तानी भी हैं, पोटवारी भी हैं, राइट? Very dynamics are Yeah, very divided in that sense. Not divided, I don't mean it in a bad way, just like different groups of people with different diversity. diversity है मुल्क में. तो उस सिचुएशन में जहां आपके पास एक वन पार्टी सिस्टम भी नहीं है जो बहुत ओप्रेसिव हो चुका है, और आपके मुल्क में डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, getting unity around a particular movement of sorts, the way that Gen Z was able to pull off in Bangladesh, is that much harder. I think much harder. So I think we have to keep that in mind. Having said that, अगर आप पाकिस्तान की periphery in particular पे अपनी नज़र दोहराएं, तो आपको नज़र आ रहा है कि Gen Z, late millennial leaders have been agitating for a long time. Manzoor Pashtun and co in the Pashtun Tahafuz movement, Maharang Baloch in Balochistan and others in Balochistan are two key elements of that, right? And they're very, very popular, and they're very popular using the same type of dynamics, technologies, and innovations that Gen Z in Bangladesh used, for example, to mobilize themselves, to engage, to get their word out, to get their ideology out. तो आई थिंक वो आपको नज़र आ रही है. खान साहब पीटीआई की एक तरह से सक्सेस इन द February 8 इलेक्शंस, वो भी जेनजी थी. कि उन्होंने किस तरह सर्कमेंट किया पूरे के पूरे निज़ाम को एक ऐसे सेटअप के अंदर जहां उनके पास अपना सिंबल भी नहीं था. उन्होंने अपनी इंगेजमेंट के थ्रू लोगों को बताया कि सिंबल क्या है, किसको वोट डालना है, कौन इंसाफियन है, कहाँ आपने जो है वो झाड़ू पे थप्पा लगाना है, कहाँ आपने पेन पे लगाना है, वगैरह वगैरह. So I think that is in the testament in Pakistan proper, as Rafiullah Kakar calls it, of the PTI and the Gen Z impact on the PTI, right? तो वो आपको नजर आता है. So I think you're seeing a lot of that, but what we're not seeing is a broad unity around a particular cause. And I think even people who sort of are deep into politics often forget in the subcontinent कि हमारा जो सियासी निज़ाम है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है. यानी कि अगर आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, तो आपको मेजोरिटी वोटर का वोट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 40% वोटर का वोट चाहिए. तो अगर आपका टर्नआउट 60% है और 60% में से जो लोग हैं वो उसमें आपको 40% वोट पड़ जाए, तो आप 2/3 मेजोरिटी करके आइन तब्दील कर सकते हैं पाकिस्तान का. इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की मेजोरिटी आपके साथ है. पाकिस्तान की माइनॉरिटी ही आपको वो पोजीशन दे सकती है बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. तो उस सिस्टम में अगेन in a country like Pakistan, it's harder to unify. But on the flip side, also, the threshold of getting to a particular place where you can fundamentally change the nature of the country by amending its constitution, the threshold is also much lower. Very low. You don't need a lot of votes to get there, to cross that threshold. Absolutely. अच्छा, I think from the global lens, जो आजकल बात हो रही है कि 2024 के अंदर it's basically a year of the democracy because the number of elections that are happening, 50 plus elections. In particular, अगर हम ट्रम्प और कमाला की बात करें, post that particular change from Biden to Kamala, I think the numbers are shifting towards Kamala in particular, and there is a strong VP candidate as well. So from that perspective, what are the repercussions that you see on the Pakistani politics, and also what's your opinion on whether there will be Trump winning the election or Kamala in that particular case? So the election is still too close to call, but you can sort of see that momentum is with the Democrats. But it's going to be an election that will be decided by less than 500,000 voters ultimately, give or take. कुछ स्टेट्स के अंदर मार्जिन इतना थिन होगा कि वहाँ आप टर्न आउट ज़्यादा करते हैं तो आप जीत जाएंगे, अगर आप फेल होते हैं तो आप हार जाएंगे. So I think that's where the election is going. It's too close, and I will see where it goes. Still a long way to go. Implications for Pakistan as such at a structural level, strategic level, I don't see a major shift either which way. I think Washington में consensus है कि अमेरिका जो है अगर ये साउथ एशिया के रीजन को देखता है और ब्रॉडर यूएस चाइना कंपटीशन के लेंस के थ्रू इस रीजन को देखता है, तो उसके अंदर ऑल बेट्स आर ऑन इंडिया. And India's emergence as a balancer to China in the region is what they want to encourage, and I think that will then inform the Pakistan strategy for either administration, with some marginal differences on the edges that could happen. Right, Donald Trump जो है वो tweet अच्छी शायद
बेहतर कर दे, और कामला हैरिस शायद आपको बाइडेन की तरह फ़ोन ना मिलाए, दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है, जो फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्शन है, वो इतना ज़्यादा मुझे चेंज होता हुआ नज़र नहीं आता टूवर्ड्स एज रिलेट्स टू पाकिस्तान। हाउएवर, स्ट्रक्चरल लेवल पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं ब्रॉडली अमेरिका की पॉलिसी पोजीशन पे जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, Donald Trump doesn't, he's not a values based person. In fact, he likes strong men. He likes people like Vladimir Putin and Viktor Orban and Kim Jong Un. So in that sense, if people who would want America to perhaps play some role, if not a big role, at least some role in constraining the worst instincts of authoritarians in Pakistan. Under Donald Trump, probably that's not going to happen as much, because he'll only care about the guy who makes a deal with him. And if it's a strong man in a uniform trying to make him a deal and make him an offer that he finds interesting, he may just love that person, right? So I think from Pakistan, that is something to consider and think about. और ये पॉइंट मैं इसलिए रेस कर रहा हूँ क्योंकि एक ब्रॉड व्यू है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी डायस्पोरा जो यहाँ पर है कि जी डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाए तो खान साहब के लिए बड़ा अच्छा होगा और पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए बड़ा अच्छा होगा। मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि आई डोंट थिंक सो। I think you're misreading Donald Trump if you think he'll sort of have some level of loyalty. हो सकता है वो थोड़ा शोर मचा दें, लेकिन फिर जनरल साहब और उनके दोस्त यूनिफॉर्म्स के अंदर जब अल्टीमेटली बात करेंगे सदर साहब और उनकी टीम से और वो ऑफर मेक करेंगे, वो कहेंगे देखिए हम तो जनरल्स हैं, तो हो सकता है कि उनका व्यू भी चेंज हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप किसी के लॉयलिस्ट तो नहीं है। एक ये है। दूसरी तरफ अगर आप कामला साइड का देखें तो बिकॉज डेमोक्रेट्स इन जनरल, at a values level, it's really hollow. I don't think it informs American strategy as much as people think, but still from a values level may care more about those sorts of things, about democracy and human rights and things like that, at least at a personnel level, right? कि वो जरा के जो लोग हैं उनसे आप बात कर सकते हैं इन इश्यूज पे, तो हो सकता है वहाँ थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो। दोज आर द टू थिंग्स आई वुड सॉर्ट ऑफ से कि हो सकता है कामला हर एडमिनिस्ट्रेशन may continue down the same path Biden's policy has been towards Pakistan and towards democracy in Pakistan, which is थोड़ी बहुत बात करते हैं लेकिन उससे ज़्यादा आगे नहीं जाते because of other interests, वो continue करे, लेकिन under Trump it may go even on further on the authoritarian side. सही है। आई थिंक जो स्ट्रॉन्ग मैन का कॉन्सेप्ट है उसमें तो आई थिंक प्रॉब्ली शायद इमरान खान भी लाई करते होंगे इन अ सेंस के he also gleans power from that particular perspective. So But बहुत he's ज़्यादा in jail right similarities. now. Yeah, I think that's also true, but I think थोड़ा सा pivot करते हैं towards the economic side. So current जो economic outlook है उसमें numbers, for example, inflation is coming down. We also have the जो PSX है हमारी, that's also skyrocketing. The interest rates are coming down. So do you think ये जो economic outlook है, is it going towards the positive side, or is it basically just two, three things which are basically not structural in nature? No, I mean, the outlook has improved dramatically over the last few months. And again, जो broad issue है वो ये है कि पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत थी, वो IMF प्रोग्राम नेगोशिएट हो गया, प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट फ्यू डेज अप्रूव भी हो जाएगा। सो पाकिस्तान विल एंड अप बीइंग इन IMF program for the next 3 years. And so long as the IMF program is alive and well, there is overall macroeconomic stability in Pakistan. And as a result of which the exchange rate is stable, inflation is coming down, reserves are inching up slowly, and the PSX is booming, right? So I think credit where credit is due. The government has broadly maintained a policy posture right now for the last few months that has allowed that stability to set in. Now, does that stability lead to a path where sustainable growth and high rates of sustainable growth, 7-8%, can be generated in Pakistan's economy without risking another external crisis? That is the question people should be asking, right? कि स्टेबिलिटी तो आ गई, ठीक है, पैसे भी रोल ओवर्स भी हो गए, IMF का अप्रूवल भी आने वाला है, तो वो सब तो ठीक है, बट यू आर स्टिल ग्रोइंग एट अबाउट 2 to 3%। द चैलेंज इज अगर कोई भी हुकूमत, सिर्फ ये नहीं, इस स्ट्रक्चरल इस इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ को अगर रेव अप करने की कोशिश करती है बियॉन्ड 3.5-4%, so you will see the same levels of current account deficits, etc., that have roiled Pakistan for a long period of time, और उसके फिर implications में reserves कम होते हैं, etc., और वहाँ से crisis शुरू होता है, right? तो क्या आप growth को rev up कर सकते हैं इस वक्त? The answer to that is no.
क्या तरीके हैं इस ग्रोथ को रेव अप करने के? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं? नॉट रियली। क्या टैक्स नेट वाइडन हो रहा है? नॉट रियली डीपन किया गया है। क्या हुकूमत और उसके पॉलिसी मेकर्स एक तरह से प्रूडेंट पॉलिसी अपना रहे हैं? फॉर एग्जांपल, पेट्रोल प्राइस अभी कट हुई क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस नीचे हैं। क्या ज़रूरी था पूरा का पूरा रिलीफ देना व्हेन वी नो प्राइसेस आर डाउनवर्ड स्टिकी? क्या आप उससे एक्सेस टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करके बेनिफिट्स डायरेक्टली नहीं दे सकते थे जो कि ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते माशरे के लोगों के लिए? फॉर एग्जांपल, बाय कटिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस फॉर द मोस्ट marginalized or for other activities which have a bigger stimulus impact. You chose not to do that because it's politically palatable to cut the petrol prices and give quote unquote relief, especially for the land cruising class, which is important for your political prospects. तो वो सवालात जो हैं वो पूछने चाहिए. Stability, however, has returned, and I don't think it's any sort of artificial stability. There's real progress they've made in ensuring that. But the question is, where do you go from here? Sounds amazing. Yeah, I think that's what the conundrum is. And I think जैसे आपने बात भी की, when we talk about the undocumented economy, so there is investment in the real estate or even ठेला वालास जो हैं उनके लिए जो incentivization है versus जो incentive जो taxation है on the corporate level, I think it's touching 50% if I'm not wrong. So जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो किस तरह बहाल हम कर सकते हैं, बिकॉज आई सी के लोग जो हैं वो पिवट कर रहे हैं फ्रीलांसर साइड ऑफ थिंग्स की तरफ जस्ट टू अवॉइड द टैक्सेशन. ऑल्सो यू नो कॉर्पोरेट्स आर ऑल्सो डूइंग दैट जस्ट टू इंश्योर कि वो जो एम्प्लॉई है वो हमारे साथ ही रहे रादर देन गोइंग एल्सवेयर. सो हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, So द I think that अनडॉक्यूमेंटेड? it's a deeper problem, right? And it's not going to be solved overnight or even in one regime. It'll take years to unwind what is a mess of decades, right? तो उसके अंदर अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएं तो आप कहें कि चलें, let's start with the two big sectors that ought to be contributing more to the exchequer, but they're not, which is real estate and retail. But you can't bring those into the system given the lack of legitimacy enjoyed by the regime and how precarious the situation is. क्योंकि अगर आप ट्रेडर्स को छेड़ते हैं तो आपकी कंस्टिट्यूंसी है पंजाब की इन पर्टिकुलर, और आप रियल एस्टेट को छेड़ते हैं तो वो नॉट ओनली आर बिग रियल एस्टेट barons who are politically important, but also it's the army and its businesses. So you're stuck there. So I think the hope that at least me and people like me have is like, instead of spending all this time in parliament debating a constitutional amendment for building a constitutional court so you can sustain your power, would have been nicer to see a 2 week long debate on tax policy in Pakistan, और हमने कैसे टैक्स पॉलिसी को इस्तेमाल करना है फॉर्मलाइजेशन बढ़ाने के लिए. आई डोंट लाइक द वर्ड डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज दैट्स लाइक कंप्लायंस एसेंशियली. आपने फॉर्मलाइजेशन बढ़ा दी है और इस इकोनॉमी के अंदर जो है जो जो पार्ट्स आपके इनफॉर्मल साइड पर हैं उनको फॉर्मल में लाना है. फॉर्मल में आप इसलिए लाते हैं कि आपकी टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर हो. अगर फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगी तो ओवरऑल बर्डन कम हो जाएगा. यू वोंट हैव द 50% कॉर्पोरेट टैक्स रेट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बिकॉज यू आर ओवरली एक्सट्रैक्टिंग ऑन वन पार्ट ऑफ द पिलर ऑफ द इकोनॉमी एंड नॉट ऑन द अदर्स बिकॉज दे आर आउट ऑफ द सिस्टम. तो शायद वो डिबेट बेहतर होता पाकिस्तान के शहरियों के लिए. दूसरी तरफ आपका पेट्रोल का भी यही मसला है कि क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया और आप जो है वो स्मगलिंग कंट्रोल नहीं कर सकते ईरान से, तो अब आपने पेट्रोल की प्राइस काटनी है क्योंकि आप बढ़ा के रखेंगे तो वहाँ ईरान से स्मगलिंग का जो इंसेंटिव है वो और बढ़ जाएगा क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस नीचे हैं. तो आपने वो करने के लिए वो क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर सकते तो आपने यहाँ प्राइस कट्स देना शुरू कर दी. तो आई थिंक दीज आर डीप डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स एंड दे रिक्वायर लॉट ऑफ लाइक consensus building and engagement and debate, and then progress can happen. Unfortunately, across the political divide, you don't see a realistic conversation on these Yeah. topics, right? And that's the real tragedy. Okay, for a country that has gone through a crisis where it has run inflation at over three times the rate of the neighbors in India and Bangladesh. वन वुड एक्सपेक्ट कि आपकी रूलिंग क्लास कोई सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करेगी अपने इकोनॉमिक मॉडल और इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर और पाथवे चेंज करेगी. बट यू डोंट सी दैट हैपनिंग. और वो कंप्लेसेंसी, मेरा डर तो ये है कि आईएमएफ के बाद वही कंप्लेसेंसी जो हम पहले देख चुके हैं वो सेट इन करेगी कि जी ऑल इज वेल, पीएसएक्स 100 के पे आ गया है और डॉलर 275 का है और रिजर्व 15 अरब पे आ गए हैं तो बस अब पार्टी ऑन करो.
Absolutely. I think that's you're absolutely right कि ये intertwined problems हैं. So अगर एक I think it's also a egg and chicken kind of a problem where, for example, if we talk about कि FBR is the primary uh, collector of the taxation. Uh, there is also a case जहाँ पे हम ये कहते हैं कि कुछ cities के ऊपर ज़्यादा expenditure है versus the other one, and we don't have the local governments to collect the taxation in that particular case. So do you see कि अगर हम इसको थोड़ा local government level पे ले जाएंगे, for example लाहौर का tax जो है वो local government collect करे और वहाँ की जो self sustainability है वो उसी शहर पे dependent हो rather than the entirety of the microeconomic economic situation No, I think that's on the also part taxation of the levels. that's also part of the conversation, right? कि एक कॉम्प्लेक्स मुल्क 250 मिलियन लोगों का, जिसमें इतनी डाइवर्सिटी हो जितनी है पाकिस्तान में, वो क्या सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू चलाया जा सकता है? एंड द आंसर आई थिंक वी फाउंड आउट इन 75 years इज नो. So you tried the 18th Amendment to devolve power, a good step. But power needs to go further down and be devolved. अब हुआ ये है कि आप पहले होते थे, कंप्लेन सब करते थे, इस्लामाबाद जो है वो इट्स द ओवर बर्डनसम पेरेंट हावरिंग ओवर एवरीबडी. अब सूबे जो हैं वो बन गए हैं ओवर बर्डनसम पेरेंट, और वो नीचे पावर नहीं डिवॉल्व कर रहे इफेक्टिवली. पावर आपने नीचे डिवॉल्व करना होगा और उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी. एक तो ये होगा कि आपकी जुरिस्डिक्शन लेवल पे कंपटीशन इंसर्ट होगा. फॉर एग्जांपल ये हम इंडिया में देखते हैं, बिकॉज इंडिया इज़ अ बिगर कंट्री. तो ये हम स्टेट लेवल पे इंडिया में भी देखते हैं कि तमिलनाडु विल compete with केरला, विल compete with आंध्रा, विल compete with गुजरात एंड महाराष्ट्र टू do the reforms and make a better ease of business environment to attract capital, to attract companies, to attract startups, etc. तो वो compete करते हैं. लेकिन उसके साथ साथ म्यूनिसिपल लेवल पे भी कंपटीशन होता है कि जी बैंगलोर क्या कर रहा है, मुंबई क्या कर रहा है, पूना क्या कर रहा है, एक्सेट्रा, बिकॉज वहाँ म्यूनिसिपल सिस्टम्स भी हैं इफेक्टिव. परफेक्ट नहीं बट इफेक्टिव हैं. अब पाकिस्तान में 4 सूबे हैं. इन दैट सेंस इज मच स्मॉलर कंट्री, राइट, तो फॉर अलाउिंग स्टेट कॉम्पिटिशन. So what you have to do is create municipalities. Now, if you have municipalities and effective local taxation, then things get very interesting, right? Because आप कह रहे हैं, as you articulated as well, कि लाहौर की resources लाहौर रेस करेगा, और फिर उसके elected representatives के ऊपर है कि वो पुलिस में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं या प्राइमरी स्कूल्स में इन्वेस्ट करते हैं या रोड बनाने में या मेट्रो में या बिजनेसेस को टैक्स ब्रेक्स देने में या नया एयरपोर्ट बनाने में. सियालकोट है, सियालकोट भी ये डिसाइड करेगा, फैसलाबाद भी ये करेगा, कराची भी ये करेगा, हैदराबाद भी करेगा, क्वेटा भी करेगा, बाकी छोटे शहर भी इसी तरह compete करेंगे. अब उस कंपटीशन के नतीजे में क्या होगा कि कुछ शहरों के अपस्टार्ट अपस्टार्ट शहरों के लोग कहेंगे कि यार हम जो है हाईवेज में और बड़ी बड़ी अंडर पासिस में अपना पैसा नहीं डाल रहे, हम एक इफेक्टिव बस सर्विस चलाएंगे, और बस सर्विस ऐसी होगी कि उसको कनेक्ट करेगी जहाँ लोग रहते हैं और इंडस्ट्रियल जोन को और कमर्शियल जोन को, और उन कमर्शियल इंडस्ट्रियल जोन में हम इंसेंटिव्स देंगे ताकि लोग आके फैक्ट्रियां लगाएं या वो करें, और हम मूव करेंगे अपने लोगों को इस काम के लिए. तो हो सकता है उससे एक नई फैक्ट्री को ले 4,000 नौकरियां बने, शहर में रेवेन्यू बढ़े, और वो फिर वो उस पॉलिसी को आगे लेके चढ़े. इस वक्त तो है ही नहीं ना ये सिस्टम कंपटीशन का. तो आपने ये इंसर्ट करना है, नंबर एक. नंबर दो, उसका बेनिफिट ये होगा कि क्योंकि आपके लोग उसी शहर के, उसी कम्युनिटी के, उनको मालूम है कि उनके टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो एक दूसरे को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने लोगों को कि भाई तुम मुझे कहते हो कि गटर का निज़ाम ठीक करो, लेकिन तुम लोग तो टैक्स ही नहीं देते, टैक्स निकालो. नंबर एक. नंबर दो, जो टैक्स देने वाला है वो फिर कहेगा क्या मैंने तुझे इलेक्ट किया था, 4 साल That's हो yeah. गए, मेरी सड़क नहीं बनी, मैं नहीं वोट दे रहा तुम्हें, मेरी सड़क बनाओ. ये हो जाएगा, कंपटीशन इधर आ जाएगा. और नंबर थ्री, लेजिटिमेसी रियासत की बढ़ेगी. रियासत की लेजिटिमेसी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि एक पार्टिसिपेटिव सिस्टम होगा जहां बॉटम अप आप लोगों को कंपटीशन के थ्रू रेस करेंगे इन एडमिनिस्ट्रेटिंग फर्स्ट अ वेरी स्मॉल jurisdiction into, if they want to be a career politician, into the state level and then into the federal level. So you will have a nursery of effective governance people who can govern this country much better. And ultimately, the lack of legitimacy or the legitimacy crisis Pakistan finds itself in right now is directly related to the fact that its people in power are unable to provide the basic services and the basic things that a modern country like Pakistan and a young population like Pakistanis need. तो जब आप ये इनेबल करेंगे तो लेजिटिमेसी भी जो है वो बढ़ेगी रियासत की, क्योंकि सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी. इस वक्त तो आप एक ऐसे निज़ाम में हैं जहां ना लेजिटिमेसी है, ना कोई ऐसा काम किया जा रहा है स्टेटस को की तरफ से जिसमें उसकी लेजिटिमेसी बढ़ी जाए. तो ये बड़ा डेंजरस
पॉइंट है। और मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये कॉन्वर्जेशन मेरी 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद किसी से हो रही थी। तो मैंने एक नोटिस किया कि बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हर पार्टी जो इलेक्शन में सूबा जीती थी वो सूबे को रूल करने के लिए बड़ी खुशी से राजी थी, लेकिन कोई पार्टी खुशी से इस्लामाबाद रूल करना नहीं चाहती थी। और अगर आप फेडरेशन हैं और आप फेडरेशन में इस लेवल पर आ गए हैं जहां फेडरेशन के पार्टिसिपेटिंग प्लेयर्स आई पॉलिटिकल पार्टीज उसके दारुल हुकूमत को रूल करने के लिए खुश नहीं हैं, तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन है ये एक फेडरेशन के लिए। और हमें सोचना चाहिए इस पे कि हम क्यों हैं इस पे और किस तरह इससे निकल सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक एक और जो टाइम टेकिंग बॉम्ब है, और मेरे ख्याल से इससे पहले एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये इतना डिस्कनेक्ट क्यों है, बिकॉज इन ऑर्डर टू rule a particular country, it has to be existing in nature, because obviously we are going towards that route where there is propensity, larger propensity of some kind of insurgency happening, and it's also happening on the periphery, for example in KP and Balochistan already, and it's coming towards the center as well. So ये जूं क्यों नहीं रेंग रही हमारे ऊपर? What's your analysis on that particular case? Is it only the disconnect, or is it also something deep rooted? आई थिंक हुआ ये है कि 2005 से 7-8 के दरमियान एक तरह से पॉलिटिकल मचूरेशन हो रही थी पाकिस्तान के एलिट्स में कि माजी से हम क्या सीख सकते हैं, हमने क्या करना है जमहूरियत को वापस लाने के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। और उसका एक जो आउटपुट निकला वो चार्ट ऑफ Charter. डेमोक्रेसी था, और उसका दूसरा आउटपुट निकला कि डेमोक्रेसी वापस आई। तीसरा आउटपुट था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ थ्रू इलेक्शंस इन 2013। तो हमने ग्रीन शूट्स देखी निज़ाम के अंदर, जहां हम कह सकते थे कि एलिट्स जो हैं वो कुछ सीख रहे हैं। आई थिंक 2014, 15, 17, if you it's difficult to draw a line, right? But let's say around the 2018 elections, in the run up to the 2018 elections, वो लर्निंग जो है वो बड़ी क्विकली अनलर्निंग में तब्दील हो गई। और उस टाइम से लेके आज तक कोई 6 साल एट द वेरी लीस्ट अगर हम काउंट करें 18 से लेके, राइट, बट लेट्स से 7.5 8 years, जो इन फाइटिंग हुई है एलिट्स के अंदर वो इतनी पर्सनलाइज हो गई है कि they have become blinded to what's going on in the world, what's going on in their own country, and the dangers that this country internally is facing of its own creation, of its elite's own creations. तो जब आप एक पर्सनलाइज लड़ाई में डिवॉल्व कर जाते हैं एट दैट वेरी elite level, you don't have the mind space to think about the things you and I are talking about, right? Seriously think about and do something about it. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आपने इस वक्त सर्वाइव करना है। अगर आप ये सर्वाइवल की जंग, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लुकिंग एट फ्रॉम द शरीफ्स पॉइंट ऑफ व्यू, हार गए तो खान साहब ने बाहर निकलना है और खान साहब ने जो है वो रिवेंज लेनी है। जो आपसे पहले भी वो कर चुके हैं, आपको जेलों में डाला और ये सब किया, आपने भी उनके साथ वो किया है तो वो भी दोहराएंगे। नंबर एक। नंबर दो, अगर आपने एक कोलैप्सिंग इकोनॉमी के अंदर अपना पावर सिक्योर नहीं किया तो क्योंकि श्रिंकिंग पाई है तो श्रिंकिंग पाई में आपका भी लॉस होगा, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि पाई श्रिंक हो रहा है लेकिन मेरा शेयर इसमें बढ़े, तो उस पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई और इंटेंसिफाई होती हुई हमें नज़र आ रही है इस वक्त पाकिस्तान में। और तीसरा ये कि आप एक जनरेशनल शिफ्ट या ट्रांजिशन में फंसे हुए हैं, तो वो हुआ नहीं है। तो वो नॉइजी आपको नज़र आ रहा है कि जरदारी साहब, खान साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, these are all characters that have been around for 30 years in Pakistan's power politics. There is a rising cohort of leaders. You may not like them, you may like them depending on your choice, but they are from the dynasties itself, whether it's the Qureshi dynasty or the Bhutto Zardari dynasty or the Sharif dynasty, etc., who are rising but they're not in a position of power. तो उनको अभी वो पूरा मौका नहीं मिला कि हम देख सकें कि शायद इन्होंने कुछ सीखा है अपने बड़ों से। तो आप उस ट्रांजिशन में इस वक्त फंसे हुए हैं। और क्या आप उससे निकल पाएंगे इन अ वे दैट you can get to the next level? I don't know. I think can't really say, but it's a very precarious situation when it comes to that. Now, last point on this, जो आपने कहा कि क्या उनको समझ है इन चीज़ों की, आई थिंक समझ है इन चीज़ों की, लेकिन
लड़ाई इतनी पर्सनल है इस वक्त कि आप उससे आगे निकलना नहीं चाह रहे, ना निकल नहीं सकते बल्कि। Absolutely. So अगर मैं इसको थोड़ा सा connect करूं with what happened in Turkey, because there was also a infighting within certain institutions within Turkey when that particular coup was happening and it was a failed coup. So उस situation से पाकिस्तान को अगर हम compare करें, I think there is lesser maturity versus what happened in Turkey, or there might be a strong man as Erdogan who controlled all the situation. सो यहाँ पे आई थिंक लीडरशिप का शायद फुकदान भी है, और दूसरा केस वो भी है कि आई थिंक द इनफाइटिंग इज वेरी पर्सनल इन दैट पर्टिकुलर केस. Yeah, also like look like again, Turkey is a homogeneous, broadly homogeneous society, right? वहाँ हैं Kurds हैं, Syrians after the Syrian civil war आ गए हैं, वो refugees हैं, Kurds को उन्होंने वैसे ही sideline पे लगाया हुआ है एक तरह से. Broadly speaking, it's homogeneous. Number one. Number two, Erdogan was before the coup was in power for a very long time, but it wasn't just like he's an authoritarian strongman for sure. लेकिन उसके पीछे जो आक पार्टी है वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, बड़ी डीप उसकी प्रेजेंस है. और फिर उन्होंने अपने आप को गुलेनिस्ट के साथ भी अलाई किया होता है, जिसकी एक सोशल पेनिट्रेशन थी टर्की के माशरे के अंदर. तो पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसकी डीप रूट्स हों अक्रॉस द कंट्री ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर. इट्स जस्ट अ फैक्ट. तो वो एक गैप है, राइट, कि यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या आपका एक निज़ाम है किसी भी पार्टी का जो कि सस्टेन कर सके एक कॉन्फ्रंटेशन को और फाइट बैक कर सके. आई डोंट थिंक सो, और नज़र आ गया हमें पिछले 2-3 साल में. um, तीसरी चीज़ ये टर्की में जो हमें देखनी पड़ेगी कि जब एर्दोगान ओवर टाइम एज ही गॉट पावर, ही ऑल्सो बिगैन exercising control over different arms of the intelligence apparatus, including naval intelligence. वो एक पूरा केस हुआ था, और he realized that this day might come, right, or he may have to confront the Kemalists within the Turkish system. Broadly speaking मैं बात कर रहा हूँ. और वो करने के लिए पहला काम तो होना चाहिए कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन डीपन करनी है, अपना इन्फ्लुएंस माशरे के अंदर गहराई तक लेके जाना है. और दूसरा कि जो रियासत के इदारे हैं उन पे मुझे अपने बंदे चाहिए और अपना कंट्रोल चाहिए. तो वो जब हुआ तो ऑब्वियसली देन दैट हेल्प्स, राइट. अब पाकिस्तान में क्या आपको ये होता नज़र आ रहा है कि कोई सिविलियन जो है इदारों के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके? बल्कि वो तो अब वॉलंटरली और जितना पहले दिया था उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं ग्राउंड, राइट, इन इदारों को. तो अगेन इट्स नॉट गोइंग डाउन द टर्किश पाथ बिकॉज वी डोंट सी द इंग्रेडिएंट्स. अगेन ये ओवरनाइट चीज़ नहीं होती. ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारी पॉलिटिकल कॉन्वर्जेशन और पॉलिटिकल एलीट्स में, कि वो समझते हैं कि सिर्फ बात करने से जो है ना, बड़कियां मारने से काम हो जाता है. यू हैव टू लुक एट, वो नवाज शरीफ के ज़माने में ये बड़ी बात होती थी कि मियाँ साहब एर्दोगान के मॉडल से बड़े जो हैं वो टेकन हैं, और वो इस तरह का मॉडल पाकिस्तान में लाना चाहते हैं. तो लेकिन वो आपने सीरियसली स्टडी नहीं किया. डॉक्टर इलान आज कहते हैं कि पाकिस्तान कि अशराफिया जो है, एलीट्स जो है, इंटेलेक्चुअल जो हैं, वो इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हैं. तो वो जब होता है तो देन यू डोंट रियली ट्रूली डू द थिंग्स दैट मेड अदर थिंग्स पॉसिबल इन अदर कंट्रीज. एब्सोल्युटली. अच्छा, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है. आई थिंक एज अ सोसाइटी वेयर वी आर हेडेड, there is basically weaponization of blasphemy or political situation. It's also in turmoil. सो हरारी अभी रिसेंटली जो एआई चेंजेस आ रही हैं उसके हवाले से उनका एक बुक है नेक्सस, जो मैं रिसेंटली पढ़ रहा था. ही वाज मेकिंग एन आर्गुमेंट कि ये जो वैसे ही हमारे पास क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन के केसेस थे, but now it's more easier to make it through the AI, and AI will eventually make us more dumb in that particular case. So हमारे पास तो खैर यहाँ पे अडॉप्शन उस लिहाज से नहीं होती, बट हम इवल चीज़ों को ज़रा जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं वर्सेस देयर एक्चुअल यूज केस. सो आपका इस पे क्या ओपिनियन है एज अ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ द वेपनाइजेशन दैट इज हैपनिंग, आल्सो अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट? So see, I haven't read the book, but I saw some of his book talks recently on this topic, and he makes some very important points. जो सबसे important point जो reminder है और आपकी audience के लिए भी, वो ये कि जब प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ था तो प्रिंटिंग प्रेस के आने के फ़ौरन बाद यूरोप जो है वो जंगों में मुब्तला हो गया था.
अब कुछ लोग कहेंगे कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन, बट अगर हम तारीख पढ़ें 30 ईयर वॉर की और किस तरह वो जो हुआ, और प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन में लूथर ने किस तरह इस्तेमाल किया प्रिंटिंग प्रेस का, और किस तरह पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज हुआ, चर्च से की तरफ से दूर गया पावर, और उसकी वजह से जंगें हुई, तो बड़ा क्लियर एविडेंस है। एंड युवाल मेक्स दिस पॉइंट एज वेल इन द कॉन्वर्सेशंस आई वॉच्ड के innovations in mediums of communication often unleash the worst instincts in human beings. They have a tendency to do that. हमारी अपनी ज़िंदगी में हमने देखा है कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे रूमर्स ने म्यांमार में हज़ारों लोगों की, रोहिंग्या की जान ले ली, राइट। इंडिया में रूमर्स की बुनियाद पे लिंचिंग्स हो जाती हैं गाँव रक्षकों की तरफ से। पाकिस्तान में रूमर्स या झूठ की बुनियाद पे पूरा का पूरा मॉब आ जाता है ब्लास्फेमी के ऊपर लिंच करने के लिए, और अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि पुलिस वाले मार देते हैं, राइट। अमेरिका में अभी पूरी इलेक्शन की आपने बात की, तो पूरा डिबेट रिपब्लिकन साइड पे कुत्ते बिल्लियों पे चल रहा है कि हेशंस कुत्ते बिल्लियां खा रहे हैं, वो सारा ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन पे चल रहा है, राइट। और फिर एडवर्सरीज भी उस पर एम्पलीफाई करते हैं बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये सब तो होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये एआई से भी होगा, और वी विल सी द वेरी बैड डाउन साइड्स ऑफ अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ डीप फेक्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन एंड बॉट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, बट दीज आर नॉट अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। आई थिंक पाकिस्तान जैसे ममालिक में मसला ये होगा कि जो टेक्नोलॉजी और जो वेव ऑफ इनोवेशन आ रही है वो कंट्रोल्ड है इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू टेक ब्रोज एसेंशियली। और वो टेक ब्रोज आपके टेक ब्रोज नहीं है, वो मेनली वेस्टर्न टेक ब्रोज हैं, या अगर आप वेस्टर्न टेक्नोलॉजी लाएंगे तो वो चाइनीज टेक ब्रोज होंगे। ठीक है ना। तो अब आप अपने आप को कैसे गार्ड करेंगे? या तो आप ऑटोमन टर्की की तरह कह देंगे प्रिंटिंग प्रेस बैंड है और हराम है तो हम नहीं उसको लाते। वो तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपका अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हम तारीख इसकी गवाह है कि दैट्स अ बैड स्ट्रेटजी टू गो फॉर। So then the good strategy would be studying the impact of this, understanding what's happening, and then having a regulatory and a policy framework that is very nimble and that is allowing your society and your young people to experiment with technology, but also finding interesting ways to deal with the bad, right? So, for example, इंडिया में इस वक्त एक पूरी तो नहीं, एक टेस्ट केस चल रहा है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड डिजी लॉकर ओवर देयर that can be used to verify your identity, and all your government documents and identification is part of that DigiLocker framework related to your Aadhaar card. Now they're rolling out a process where people voluntarily can, for example, verify their LinkedIn profile with DigiLocker. तो आपका डेटा सिक्योर है उसी सैंडबॉक्स के अंदर है डिजी लॉकर के, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ योर आधार स्टैक, राइट। और लिंक्डइन जो है वो कनेक्ट करता है उस डिजी लॉकर से टू वेरीफाई दैट यू आर दानिश एज यू से यू आर, और फिर वो वेरिफिकेशन आ जाती है कि आप दानिश ही हैं। So can we do that? We have the infrastructure, we have NICOPS, we have NADRA cards, and overseas Pakistanis have NICOPS, etc. So can you verify identity on the internet to prevent bot-led misinformation? I think absolutely yes. I think युवाल की भी ये argument है कि आपने bots को ban करना होगा on the internet. You cannot allow in the garb of free speech that to happen, right? So, but all of that requires deep thinking by experts who educate parliamentarians to make them understand कि कहाँ दुनिया जा रही है और कहाँ आपने करना है। और जैसे हमने पहले बात की, इस वक्त आप जिस लड़ाई में हैं वहां तो आप फायरवॉल बनाने की बात कर रहे हैं। That's your solution, right? So I think that's where we are. I think it can be an extremely powerful, extremely positive force, artificial intelligence, on a country like Pakistan in profound ways if Pakistan's people and its society and its policymakers get it right. But if you don't get it right, not only will it unleash more violence and polarization into your society and make you probably dumber, or we'll see where it goes. I don't fully buy that argument by Yuval. But it most definitely will, failure to take it in properly will most definitely further the decline that you have, relative decline with other countries economically, technologically, sociologically. तो ज़रूरी है इस पे आज सोचें, लेकिन of course कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है इस वक्त। सही बात है। And I think UK riots भी similar lens की through ही हुई थी. There was Correct. so I think
Web3 के ऊपर बात करते हैं. You talked about India. India has the demonetization. There is basically a QR code. आप किसी पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि वो यूटिलाइजेशन उस लेवल के ऊपर है. सो एक तो उसके ऊपर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अडॉप्शन क्यों नहीं कर पा रहा. और आई थिंक Web3 इज बीइंग द latest technology. In that case, the adoption is too far away. So how do you see governance adopting that? Because currently अगर हम बात करें गवर्नमेंट लेवल पे तो वहाँ तो स्टेनो जो है अभी तक चल रहा है. तीन जो है वो स्टेनोज हैं एक सेक्शन ऑफिसर के पास. सो उस लेंस से ना अभी हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा चुके हैं, जा सके हैं, rather than going towards the actual technologies. Yeah, so look, I mean, the potential is very strong, right? Again, these are all technologies that are converging essentially. Clean energy, for example, battery storage technology, blockchains, Web3, artificial intelligence. You need to think about them as things that feed off of each other, similar to the technologies converging that make our conversation virtually possible today, because cameras converge with telecommunication advances, converge with semiconductor advances, converged with advances in computing and software engineering, converged with advances in liquid crystal displays and things like that. All of those things, even if you take out one or two of them, mean that our conversation today is not possible, right? So there's a convergence happening. Now, when that convergence is happening on things like Web3 plus AI, plus age-old problems that you need to solve for, right? So let's look at smart contracts, for example. Technology built on blockchains and made popularized by blockchains, but it's not only related to blockchains, but it's an output of that. So you can do a lot of things in the Web3 broader spectrum with smart contracts. For example, अगर आज पाकिस्तान में हमें मालूम है कि ज़मीन के ऊपर घपला बहुत ज़्यादा होता है और उसकी ट्रांसफरेंस में लोग जो है वो कब्जा कर लेते हैं, गलत पेपर्स बना देते हैं और फिर वो कोर्ट में 25 साल तक चलता है. The question I would have is, can we use something like smart contracts to experiment, number one, at the initial level, but then scale it up to solve for this problem across the nation? Okay, if you want to do that, the answer to that is absolutely yes. That technology exists and you can actually do that. How would you go about doing this? Let's assume कि मेरा experiment जो है वो एक छोटी सी neighborhood level पर हो रहा है जहाँ 10 plots हैं. मुझे सैटेलाइट लेके जानी है जो कि ऑलरेडी हुई भी है, उस प्लॉट की GIS लेनी है, उसकी मार्किंग्स करनी है कि अच्छा ये 10 प्लॉट्स हैं, ये लैट लॉन्ग्स हैं, ये इसका मेटा डेटा है, एक्सेट्रा, ये इसकी तस्वीर है. और उसको मुझे फिर लिंक करना है एग्जिस्टिंग पेपर वर्क के साथ कि ये लैट लॉन्ग, ये GIS is owned by Danish, this one is owned by Uzair, this one is owned by somebody, and all of us have identity established to it, so it's linked to that. And so number one, आपने डिजिटाइज कर दिया लैंड रिकॉर्ड. अब वो इम्यूटेबल ब्लॉकचेन पे आप डाल दें तो यू कांट, इट्स टैम्पर प्रूफ. तो वो जो इशू होता है कि पैसे दे के आपने कागजात बदलवा दिए और फिर आप 25 साल कोर्ट में, तो वो दरवाज़ा आपने बंद कर दिया, अज्यूमिंग कि पहली जो रिकॉर्ड कलेक्शन है वो ऑनेस्टली की गई है, राइट? तो ये एक बड़ी अजम्पशन है. ये चीज़ें टेक्नोलॉजी सॉल्व नहीं कर सकती, ये इंसान और इंसानी प्रोसेसेस की सोल्यूशन चाहिए उसके लिए. बट अज्यूमिंग आपने वो काम कर दिया, तो अब आप कहते हैं कि दानिश मुझे प्लॉट बेच रहा है अपना इसी जुरिस्डिक्शन में और ये डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड है. तो अगर मैं उस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इनेबल करूँ तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, लॉयर ही करेगा, बेसिकली डिजिटाइज डॉक्यूमेंट होगा जो कहेगा कि दानिश ने इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई है, उजैर ने एक्सेप्ट की है, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट है, ये इन दोनों की आइडेंटिटी है, इन्होंने डिजिटली साइन किया है, इट्स लिंक टू दैट नादरा आइडेंटिटी स्टैक, पिंग हुआ, वहाँ से साइन कंफर्म हुई, आपके पास OTP आया है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हुआ, आपने अप्रूव किया उसको. None of this is happening in any office. It's all you're sitting where you are, I'm sitting where I am, and the lawyer is sitting on both sides where they are. ये अप्रूवल जब होगा तो अब आपने एग्जीक्यूट करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन व्हाट? द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन सिग्नेचर्स ऑफ बोथ द बायर एंड द सेलर, इन दिस केस you and I, and the payment by me to you for 1 crore. Now your bank account and my bank account is also part of the Nadra stack. You transfer that money into the relevant bank account जो कि उस contract का हिस्सा है. The smart contract can verify that once the payment is cleared, आई उजैर के बैंक अल हबीब के अकाउंट से आपके बैंक अल-फलाह के उस अकाउंट में पैसे चले गए और वो पिंग वेरिफिकेशन आ गया उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद ही प्रोसेस कर लेगा उस डेटाबेस के अंदर जो इम्यूटेबल डेटाबेस है कि दानिश ने अपनी ज़मीन बेच दी है उजैर को, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट है, ये अटैच हो गया उस चेन के ऊपर, और उसके साथ साथ एविडेंस भी अटैच हो गया ऑफ द पेमेंट दैट उजैर हैज़ मेड.
Now that smart contract will trigger a transfer of the property from you to me. And at the same time, because all of this flow is digitized, it can also automatically transfer all of the relevant stamp duties and taxes that now I owe and you owe to the Sarkar for this transfer of property, right? All of this is Web3, and all of this is possible right now. The integration of the infrastructure and the processes needed to make it happen is what you need to invest time and effort and resources into. But it's profoundly magical if you do it at scale, because you solve for a very real, very painful problem, especially for poorer people in countries like Pakistan who get robbed of their property in this way, right? In the existing status quo. तो उस पे इंडिया में डिजिटाइजेशन हो रही है लैंड रिकॉर्ड्स की. इंडिया ने ऑलरेडी फॉर एग्जांपल डिजिटाइज बहुत सारा डिजिटाइज कर दिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर सब्सिडीज टू फार्मर्स, उसका सॉइल हेल्थ रिकॉर्ड को इंटीग्रेट कर रहे हैं एसेट्रा. तो सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं एंड आई थिंक पॉसिबल हैं. आप उसको Web3 कहें या गवर्नमेंट लेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहें या कोई और उसको लेबल दे दें, आई डोंट थिंक इट मैटर्स. बट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. आपने उसको एग्जीक्यूट करना है पहले पायलट स्टेज पर ताकि आप सीखें, और एक पायलट नहीं, आप 4-5 पायलट्स करें, 4-5 इनोवेटर्स के डिफरेंट सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करें. किसी का व्यू होगा कि ये जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है, कोई और सोल्यूशन बेहतर है, तो आप उसको भी जगह दें और उससे सीख के आप फिर स्केल करते हैं, विच इज़ हाउ ऑल टेक्नोलॉजी स्केलिंग हैपन. सो दैट्स व्हाट यू कैन डू एंड आई थिंक वी आर ऑलरेडी देयर इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू डू इट. Sounds fascinating. I think कि जिस तरह आपने articulate किया है इस तरह शायद कोई भी नहीं कर सकता in the deeper depth and the insights that we can glean from it. So I'm out of questions. I think we are out of time as well. So thank you so much for coming onto the podcast. I think it was a lovely experience. Same goes for the audience as well. Thank you for having me and let's stay in touch. All right. Thank you so much. Have a